Hi students, in last video we discussed about the Ode. Now we are going to discuss about the next form of literature in poetry, the epic. First of all, I hope you will be hale and hearty. Now I start the topic, the epic. Epic. Epic means cab. Epic means cab. Poem plus poem प्लस पोएम और भी आगे पोएम प्लस पोएम कॉम्बिनेशन ऑल पोएम्स कॉम्बिनेशन कॉल्ड एपिक ऑल पोएम कॉम्बिनेशन ऑल पोएम्स कॉम्बिनेशन कॉल्ड एपिक एपिक इज a long narrative poem. Epic is a long narrative poem which celebrates the life, heroic deeds, and achievements of a great hero. Three topics या three matters subjects are included in the epic: the life, heroic deeds, achievements of a great hero. Understand? Next, the subjects of an epic. The subject of an epic must be serious. Must be serious, such as a serious event, a serious accident, a serious incident, a serious program, a serious journey, etc. Understand? And its style, the epic's style must be elevated. Elevated means elevated, starting serious, यानी जो थीम है उसकी स्टाइल है वो एलिवेटेड होनी चाहिए. एलिवेटेड का मतलब नीचे से ऊपर जाने वाली, नीचे से ऊपर. या फिर दूसरा बोल सकते हैं हम हैप्पीनेस. कैसे होनी चाहिए? हैप्पीनेस. इट्स स्टाइल यानी एपिक्स स्टाइल मस्ट बी एलिवेटेड. अंडरस्टैंड? द फेट ऑफ ए नेशन और द ह्यूमन रेस. दो टॉपिक हैं आपके, द फैट ऑफ ए नेशन. फर्स्ट वन इज द फेट ऑफ ए नेशन एंड सेकंड वन इज ह्यूमन रेस. सेकंड वन इज ह्यूमन रेस. अंडरस्टैंड? डिपेंड्स ऑन या और यानी फेट ऑफ ए नेशन और ह्यूमन रेस डिपेंड्स ऑन द एक्शंस ऑफ इट्स हीरो. इट्स हीरो मतलब एपिक्स हीरो. अंडरस्टैंड? एपिक्स हीरो. नेक्स्ट, एंड अदर प्रिंसिपल कैरेक्टर्स. यानी जो एपिक में जितने भी पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं जितने भी, उन जो प्रिंसिपल हैं यानी मुख्य मेन हैं वो या फिर हीरो, इन दोनों पर इसकी थीम क्या होती है? डिपेंड होती है. चाहे वो ह्यूमन रेस हो, चाहे वो क्या हो, फेट ऑफ ए नेशन हो. अंडरस्टैंड? द एपिक इज कंसिडर्ड of the highest genre of the poetry. The highest genre of poetry is the epic. Understand? It is also considered the greatest and most sublime form. The greatest and most sublime form of poetry is the epic. Understand? The most sublime या greatest sublime
form of poetry is the epic. The poet is an poet of an epic. Who? The poet of an epic must be highly imaginative. Must be highly imaginative. Means the poem, long narrative poem, a poem that is long narrative poem या long narrative lyric, it's called epic. तो poet must be imaginative and skillful to deal with a serious subject. Skillful deal to serious subject of a grand scale. Of a grand scale. Understand? Epic, a long narrative poem. Understand? Which celebrates the life, heroic deeds, achievements of a great hero. Understand? First thing. Second thing, the subject of an epic must be serious and its style, the epic's styles must be elevated. First one is subject serious, style elevated. Understand? Subject serious and style, epic's style must be elevated. Understand? The two things, the fate of a nation or human race depends one of both. One of both depends on the actions of its hero, the epic's hero. किस पे डिपेंड करती है? एपिक के हीरो पर डिपेंड करती है, या फिर हम दूसरे जो पात्र हैं, प्रिंसिपल पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, उन पर भी क्या करती है? डिपेंड करती है. द एपिक इज कंसीडर्ड द हाईएस्ट फॉर्म या हाईएस्ट जेनर ऑफ ए पोइट्री. यानी पोइट्री का सबसे बड़ा जो रचना है वो क्या है? इसकी एपिक है. इट इज ऑल्सो कंसिडर द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोइट्री. द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सबलाइम क्या चीज़ होती है पोइट्री की? द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोइट्री इज द एपिक. द पोइट ऑफ एन एपिक, यानी एपिक लिखने, द एपिक कंपोज्ड बाय ए पोइट हु must be imaginative, and skillful to deal with a serious subject, on a grand scale. Understand? Here some examples of an epic. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए इसके एपिक के. एक तो सबसे पहले आप पैराडाइज लॉस्ट, सबसे ज़्यादा काम आने वाला एपिक है आपको. पहला एग्जाम्पल्स है इसके पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट ये किसका? जॉन मिल्टन का. किसका? ये जॉन मिल्टन का. ठीक है. ओडिसी सेकंड है आपका, ओडिसी. सेकंड कौन सा आपका? ओडिसी है. ये भी एक एपिक है और ये एपिक लिखा है होमर ने. किसने लिखा है? होमर ने. नेक्स्ट है इसमें डिवाइन कॉमेडी. डिवाइन कॉमेडी ये इसकी दांते की. किसकी? ये दांते की है. बस आपको 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना. वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन 3 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं. सबसे ज़्यादा तो आपको क्या रखना है? द पैराडाइज लॉस्ट. अंडरस्टैंड? ये किसका है? जॉन मिल्टन का. आगे बात समझ में. दूसरा ध्यान रखना आपको कौन सा? ओडिसी और होमर का ये. और डिवाइन कॉमेडी किसकी है? दांते की. ये आपको ध्यान रखने हैं. नेक्स्ट जो हम फॉर्म पढ़ेंगे पोइट्री की वो है आपका, इसी में आता है मोक एपिक. कौन सा आता है? मोक एपिक. मोक एपिक. तो मोक एपिक को समझिए आप.
हाँ, मोक एपिक। मोक एपिक में देखिए, एपिक और मोक एपिक। एपिक सब्जेक्ट सीरियस, मोक एपिक नो सीरियस, यानी लाइट। पैरोडी, पैरोडी, अंडरस्टैंड। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें कि एपिक का सीरियस होता है, एलिवेटेड स्टाइल में होता है ये, ठीक है। मोक एपिक क्या होता है, कोई सीरियस नहीं होता है, यानी लाइट होता है वो, और उसकी जो स्टाइल होती है वो कैसी होती है, पैरोडी स्टाइल होती है। तो द मोक एपिक इज ए पैरोडी ऑफ ए रियल एपिक। पैरोडी होता है किससे, रियल एपिक का पैरोडी होता है, ठीक है। इन ए लाइट और नॉन सीरियस मूड, इन ए लाइट और नॉन सीरियस मूड। इट इज रिटन ऑन ए ट्रिवियल, ट्रिवियल बोलते हैं बेटा तुच्छ, ट्रिवियल और फनी इंसिडेंट्स, ट्रिवियल और फनी इंसिडेंट्स इन ए सटायरिकल स्पिरिट। द मूड ऑफ द एपिक यानी मोक एपिक इज सटायरिकल, सटायरिकल, अंडरस्टैंड। हाउएवर द क्लासिकल कन्वेंशंस, कौन, क्लासिकल कन्वेंशंस, ठीक है, एंड सुपर नेचुरल मशीनरी ऑफ ए रियल एपिक इज यूज टू प्रोवोक सटायरिकल humor, understand। द बैटल ऑफ द फ्रॉक्स एंड माइस, एक एग्जाम्पल इसमें, द बैटल ऑफ द फ्रॉक्स एंड माइस, ठीक है। इन ग्रीक, दूसरा द रेप ऑफ द लॉक, इन इंग्लिश में एग्जाम्पल कौन सा है, द रेप ऑफ द लॉक। द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मॉक एपिक, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं इसका सेकंड नेम बोल सकते हैं मॉक हीरोइक पोएम, मॉक हीरोइक पोएम, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दी, इसमें दो एग्जाम्पल हैं इसमें। एक तो है इसका द बैटल ऑफ फ्रॉक्स एंड माइस, ये तो है ग्रीक में। और इंग्लिश में बात करेंगे ना, द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक, ये किस में, इंग्लिश में। ये दोनों एग्जाम्पल है किसके, मोक एपिक के। ये आपके दोनों फॉर्म्स कौन कौन से, पहला हमने एपिक पढ़ा जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती, दूसरा होता है मॉक एपिक। होती तो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, लेकिन इसका मैटर और उसका मैटर दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।